Let us continue with the chapter of financial planning. In this video, we will be discussing about shares, and just a very basic idea of shares is going to be given to you. Basic enough, I mean, whatever we will be discussing will be just enough for you to solve questions from the practice set 4.4. Let's begin. Say for example, I have a company, and in that company, a total investment is being made of, for example, okay, 500 rupees. There are some people who came together and invested 500 rupees in a company. That is, for whatever business the company wanted to do, it initially required some money. And that money was 500 rupees given by some amount of people. Let us say, with that 500 rupees, I made a company and I am dividing that company into a total of 10 parts. Every part of the company, if the company currently has 500 rupees, then every part of the company is going to be worth 50 rupees. For example, in making this company, I had given 150 rupees. Then I will be owning 3 parts in this company. That means I will be owning a total of 3 shares in the company. Every part in which the company is being divided is called a share, and a share value is the same. If you look at it carefully, I have divided the company into 10 equal parts. I can't say that one share will be 50 and another share will be 100. If somebody has contributed 100, you give him 2 shares of 50-50. But the company, the share of the shares are going to be equal. There is no share which can be 50 and other share 100. सब शेयर का वैल्यू जो रहेगा वो सेम रहेगा. तो कंपनी का एक शेयर अमाउंट है 50, मैंने 150 दिया था, तो आई एम द ओनर ऑफ 3 शेयर्स. My friend contributed 200 rupees and he is the owner of 4 shares. These 4 shares are owned by my friend. I am the owner of 3 shares. And one more friend of mine, he came and he contributed some money and he is the owner of 3 shares. This is how the shares will be distributed in a company amongst whoever has invested in a company. Say for example, this friend of mine, he feels that the company is not making any profit, or even if the company is making any profit, he does not want to invest his 50 rupees in this company. Usko, okay, he has invested 200, but let us say he wants 50 rupees. So he will go to an external person. He will tell him that, hey, I have the shares of this company is trading, whatever business it will do, whatever profit it will gain, you will be given a part of that profit. So would you like to buy 1 share from me? This person, he may say yes. For example, if he says yes, this guy, my friend, he will tell me that every share of the company is worth 50 rupees. I am selling you 1 share. This person will say, I don't want it in 50 rupees. You sell it to me at a cheaper rate. So because my friend needs money, he might have to sell it at a cheaper rate. It is also possible that this company is making profits, but this guy is in desperate need of money. So he might want to sell away that share, even though it is a profitable share, he desperately needs money. So he's just willing to sell 1 share. So in that case, my friend will tell the other guy that, look, my company is making a profit. I am giving you 1 share, but anyway you are going to make a profit on that. So the 50 rupees share, I will sell it to you at a higher rate. See, my point of this entire discussion is, अगर मेरा दोस्त चाहे तो वो अपना एक शेयर 50 से ज्यादा पे भी बेच सकता है और 50 से कम में भी. It depends upon how well the company is performing and what are the perceptions of that company in the minds of common public. अगर मेरे फ्रेंड ने ये शेयर इसे बेचा 70 रुपीज में, तो 70 rupees is what we will call the market value of that share. The amount at which you are selling or buying a share is called market value. It has nothing to do with this 50 rupees. 50 rupees is the cost of the share which is registered with the company. For the company, every share is 50 rupees only. And that 50 rupees is what we call the face value. The actual value of the share is called face value. But the rate at which, the price at which the share is being sold or purchased in the market is what you call market value. Okay. Now,
मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू वो तो ठीक है, चलो। कंपनी ने मान ले कुछ प्रॉफिट किया, इट मेड सम प्रॉफिट एंड कंपनी इज डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन एवरी शेयर. Okay, my friend, for example, he has sold all the 4 shares to this person. Now this person has 4 shares bought at 70 rupees per share. I have 3 shares and one more friend of mine has 3 shares. कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया. डिविडेंड डिक्लेयर किया मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, और क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, इट डिसाइडेड दैट इट विल गिव अवे द मनी टू ऑल द शेयर होल्डर्स. कंपनी कितना पैसा देगा शेयर होल्डर को? कंपनी देगा 10% ऑफ फेस वैल्यू टू एवरी शेयर होल्डर. कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगा ना, तो वो फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर करेगा. तू पूछेगा क्यों फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्यों नहीं? देख, मार्केट में आदमी ने किस प्राइस में खरीदा या बेचा, उससे कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है. कंपनी ने अपना फिक्स रखा था. कंपनी ने बोला मेरा शेयर 50 का मतलब मेरा शेयर 50 का. अगर मैं कुछ दूंगा तो मैं मेरे वैल्यू पे दूंगा, तेरे वैल्यू पे नहीं. तो इसके लिए कंपनी ने अगर 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो 10% दिया जाएगा 50 रुपीज पे. एक शेयर 50 रुपीज का है तो उसका 10% आएगा 5 रुपीज. तो हर शेयर होल्डर को हर शेयर पे 5 रुपया मिलेगा. क्योंकि मेरे पास 3 शेयर थे, मुझे मिलेगा 15 रुपीज. मेरे दोस्त के पास 3 थे, उसे भी मिलेगा 15 रुपीज. इसके पास 4 शेयर थे तो इसे भी मिलेगा, इसे मिलेगा 5 रुपीज पर शेयर, इसे मिलेगा 20. ध्यान से देख, मैंने 10% डिविडेंड 50 पे कैलकुलेट किया, 70 पे नहीं. इसने 70 में ही खरीदा था, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया 50 पे, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी फेस वैल्यू के ऊपर. ओके, ये आ गया तेरा एक पार्ट. अभी सेकंड पार्ट. मैंने कहा ये मेरा दोस्त, ये वो आदमी जिसने शेयर खरीदा, क्या मेरा दोस्त डायरेक्टली उसको शेयर बेच सकता है क्या? द आंसर इज नो. अगर शेयर खरीदना या बेचना है तो बीच में एक ब्रोकर करके आदमी चाहिए तुमको. ये आदमी ब्रोकर से कहेगा कि ब्रोकर भाई तू मेरा शेयर बेच दे, तो ब्रोकर देखेगा कि उसके पास कोई बायर है क्या. अगर ब्रोकर को मालूम पड़ा कि इस आदमी को शेयर चाहिए तो ब्रोकर बोलेगा आपके शेयर का जरूरत किसी को है, मैं बेच दूं. ये हाँ बोलेगा तो ये शेयर इसको बेच देगा. शेयर को अगर खरीदना या बेचना है तो वो ब्रोकर के थ्रू ही होएगा. एंड क्योंकि ब्रोकर ने तुम्हारा काम किया, तुम्हारा शेयर लेके किसी को बेचा, या तुम्हें अगर खरीदना है तो भी ब्रोकर हेल्प करने वाला है. तो क्योंकि ब्रोकर तुम्हें शेयर्स को सेल करने और खरीदने में हेल्प करता है, ब्रोकर उसका कमीशन लेगा. एंड कमीशन ऑफ ए ब्रोकर इज व्हाट यू कॉल ब्रोकरेज. ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होगा सम्स में देखते हैं. और क्योंकि अभी सम्स का बात किया, हम शुरू कर लेते हैं सीधा सम्स के साथ, बिकॉज वॉट एवर नॉलेज यू वांटेड इज ऑलरेडी देयर विथ यू. मार्केट वैल्यू एक शेयर का 200 रुपीज है और ब्रोकरेज 0.3% है. फाइंड द परचेज वैल्यू. देख, सीधा बात है. मैंने कहा था मार्केट वैल्यू मतलब क्या? जिस वैल्यू पे शेयर मार्केट में खरीदा या बेचा जाएगा वो तेरा मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू एक शेयर का 200 रुपीज है. ये शेयर बेचने या खरीदने के लिए ब्रोकर का जरूरत पड़ेगा, और ब्रोकर जो कमीशन लेगा वो लेगा 0.3%. ब्रोकर का कमीशन गिना जाएगा मार्केट वैल्यू पे. अगर शेयर बेचा गया 200 पे तो ब्रोकर 200 पे 0.3% लगाएगा, और जितना भी अमाउंट आया उतना ब्रोकरेज वो कलेक्ट करेगा. तो ब्रोकरेज इज 0.3%. So you can say brokerage amount or brokerage value. ये आएगा 0.3%. Like I said, it will be calculated on the market value 200. ये जो प्राइस आ गया ये आया रुपीस, जीरोस कैंसिल कर दे तो ये आ जाएगा रुपीस 0.60. ओके, सो फाइनली परचेज वैल्यू. अगर मैं इस ब्रोकर के पास गया और मैंने कहा कि ब्रोकर भैया मुझे 200 रुपीज वाला शेयर दे दो, तो ब्रोकर कहेगा हाँ भैया देता हूं, आप पहले 200 रुपीज दो शेयर का, तो मैं उसे 200 दूंगा. फिर वो बोलेगा भैया मैंने आपका काम किया, ब्रोकरेज निकालो. ब्रोकरेज कितना निकालू? 0.6. तो मैं 0.6 का ब्रोकरेज भी निकालूंगा
और मेरे लिए परचेज वैल्यू आ जाएगा 200.60 रुपीज। 200 रुपया शेयर का जो ब्रोकर आगे पास ऑन कर देगा, जिसने भी मुझे शेयर बेचा रहेगा उसको, और 0.6 रुपीज का ब्रोकरेज मैंने ब्रोकर को दिया और वो 0.6 रुपीज ब्रोकर अपनी जेब में डालेगा। दैट इज हाउ बेसिकली ब्रोकरेज वर्क्स। अब आ जा सेकंड वाले पे। देख, सेकंड वाले में मार्केट वैल्यू दिया 1000, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, मतलब अभी ये शेयर में बेच रहा हूं, ठीक है, मेरे पास शेयर है, वो शेयर मैंने मार्केट में बेचा, कितने में बेचा, 1000। तो तू क्या बोल, मार्केट वैल्यू ₹1000, ब्रोकरेज कितना देने का, ब्रोकर मेरे को बोला सर ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा 0.1%। तो ब्रोकरेज अमाउंट कितना बनेगा, ब्रोकर ने शेयर कितने में बेचा, हाँ 1000 रुपीज में, ब्रोकर ने या मैंने, जिसने भी, शेयर का मार्केट वैल्यू 1000 है, तो 1000 रुपीज का 0.1% निकाला और ये तेरा आ गया 1 रुपी। तो मुझे ब्रोकर को 1 रुपी देना पड़ेगा। अभी मेरे और ब्रोकर के बीच में बात क्या होगा, सी आई वॉन्ट टू फाइनली कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। तो मैं ब्रोकर को फोन करूंगा, मैं कहूंगा ब्रोकर तूने मेरा शेयर बेचा ना 1000 का, चल ला 1000 रुपए। तो ब्रोकर बोलेगा हाँ सर मैं आपको 1000 रुपीज भेज रहा हूं, लेकिन सर मैंने आपका शेयर बेचा ना, तो आपको मुझे ब्रोकरेज का 1 रुपी देना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है तू 1000 रुपीज भेज, मैं तुझे 1 रुपी देता हूं। तो अल्टीमेटली मेरे पास आया 1000, मैंने दिया 1, तो मेरे पास आया 1000 रुपीज -1, क्योंकि ये 1 मैंने ब्रोकर को दिया ना। तो आई रिसीव्ड 999 रुपीज। सो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल विल बी ₹999। यहां पे तू कहेगा एक मिनट, ये ब्रोकरेज का बिजनेस तो सॉलिड है। एक तो जिसने खरीदा उससे भी ब्रोकरेज लेगा और जिसने बेचा उससे भी ब्रोकरेज लेगा। द आंसर इज यस। ब्रोकर जो है वो खरीदने वाले से भी पैसा लेगा और परचेज करने वाला, सॉरी खरीदने वाला ही परचेज वाला होता है, खरीदने वाले से भी पैसा लेगा और बेचने वाले से भी पैसा लेगा। बेचने और खरीदने वाला दोनों ब्रोकर को ब्रोकरेज देंगे और उतना ही ब्रोकरेज देंगे। मतलब अगर इस ब्रोकर ने मेरे से 1 रुपया लिया ना, तो जिसने शेयर खरीदा मेरे से उसके पास से भी ब्रोकर ने 1 रुपया लिया है। तो ये ब्रोकर ने उसी शेयर पे कमीशन, उसका ब्रोकरेज 2 बार लिया। दुनिया का दस्तूर ऐसा ही है, ब्रोकरेज का बिजनेस ऐसे ही चलता है, कुछ गफला कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है और ये बराबर है। तू अभी थर्ड वाले पे आ जा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेज ऑफ शेयर्स वेयर B स्टैंड्स फॉर बाय एंड S विल स्टैंड फॉर सेल। ये एक्चुअली तुम लोग के टेक्स्ट बुक में B और S लिखा है, मैंने बाय और सेल लिख दिया। ये टेबल हमें अभी फिनिश करना है, ठीक है। अगर मैंने 100 शेयर्स बाय किया 45 रुपीज मार्केट वैल्यू पे, मतलब एक शेयर का वैल्यू 45 रुपीज, ऐसा मैंने 100 शेयर बाय किया, तो मुझे टोटल अमाउंट ब्रोकर को देना पड़ेगा 4500। ब्रोकर बोलेगा भैया ये तो शेयर का प्राइस है ना, ब्रोकरेज मेरा कमीशन तो दो। मैं बोलूंगा हाँ बोल ब्रोकर कितना कमीशन तेरा, ब्रोकर बोलेगा 0.2%। 0.2% निकालो, मतलब 0.2 अपॉन 100 इंटू 4500, 00 कटा 00 कटा, 45 इंटू 2 90 आएगा, तो 45 इंटू 0.2 9 आएगा। ब्रोकर मेरे से 9 रुपीज का ब्रोकरेज लेगा। अब ब्रोकर इधर रुकेगा नहीं, वो जीएसटी भी लगाएगा। ब्रोकरेज पे 18% जीएसटी लगता है, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। इस रेट से वो मेरे से ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी चार्ज करेगा। ध्यान से सुनो, ब्रोकर को मैंने उसका कमीशन ब्रोकरेज दिया और ब्रोकर मेरे से दिए हुए ब्रोकरेज पे जीएसटी भी वसूलने वाला है। ब्रोकरेज कितना, 9 रुपीज। जीएसटी, ब्रोकर का जीएसटी कैलकुलेट होएगा ब्रोकरेज पे ही। सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी भी 9% है। 9% ऑफ 9 निकालो, दैट इज 9 अपॉन 100 इंटू 9, ये आएगा 81 अपॉन 100, 0.81। तो ये आ गया 0.81
और ये भी आ गया 0.81। तो टोटल मुझे ब्रोकर को कितना देना पड़ेगा? मैंने क्योंकि 100 शेयर्स बाय किया, 4500 तो देना ही है शेयर्स का। ब्रोकरेज 9 रुपया देना पड़ेगा, 0.81 सीजीएसटी और एसजीएसटी भी मुझे ब्रोकर को देना पड़ेगा। तो ब्रोकर को मुझे देना पड़ेगा, इसका टोटल आएगा 1.62, 9 और 1.62 आएगा 10.62, उसको ऐड कर दे 4500 में, तो आई हैव टू पे हिम 4510.62 रुपीज फॉर बाइंग द शेयर्स। अभी सेल्स पे आ जा। मैंने अपने पास 75 शेयर्स था, उसको सेल किया। एक शेयर का प्राइस 200 रुपीज। तो मैंने बोला ब्रोकर को कि ब्रोकर 75 शेयर्स पड़ा है ना मेरा, वो सेल कर दे। 200 रुपीज पे 75 शेयर्स को सेल किया, कितना वैल्यू आएगा? 75 इंटू 2 150, और 200 था तो आगे 2 जीरोस लगाया, तो टोटल वैल्यू मुझे मिलेगा 15,000 है ये, 15,000 मिलेगा। ब्रोकर बोलेगा सर ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा। मैं बोलूंगा गिनती कर, बता कितना। ब्रोकर बोलेगा 0.2 अपॉन 100 इंटू 15,000, जीरोस निकालो 15 इंटू 2 30 रुपीज। तो ब्रोकर को मुझे 30 रुपीज देना पड़ेगा उसका ब्रोकरेज। 30 रुपीज पे वो 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगाएगा, तो 9% ध्यान में रख 30 रुपीज का। ब्रोकर जो जीएसटी लेगा ब्रोकरेज पे ही लेगा। ये आएगा 9 इंटू 3 27 अपॉन 10 2.7, तो 2.7 तेरा दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी। अभी ब्रोकर मुझे देने वाला है 15,000 जो ये शेयर्स बेच के मिला था वो, लेकिन वो मुझे बोलेगा सर उसमें से मैं मेरा 30 रुपीज और ये 2.7 जो 5.4 होता है, टोटल इतना काट के मैं आपको आपका पैसा भेज दूंगा। ब्रोकर मुझे देने वाला था 15,000, उसमें से उसने 30 और ये 5.4 मतलब 35.4 माइनस कर दिया। तो 15,000 में से 35.4 माइनस कर, ये आएगा 14,900। कितना माइनस किया था उसने? 35 ना, तो ये आएगा 64 पॉइंट, और पॉइंट तेरा 4 माइनस किया 64.60। हाँ, तो 14,964.60 रुपीज इतना आएगा मेरे पास। तो मुझे मिलेगा इतना पैसा शेयर बेच के, और शेयर खरीदने के लिए इतना पैसा ब्रोकर को देना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। श्रीमती देसाई sold shares of face value 100 rupees when the market value was 50 rupees and received 4988.20 rupees. उसने पे किया brokerage of 0.2% and GST on brokerage 18%. How many shares did she sell? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी देख फेस वैल्यू का तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि ये शेयर का खरीदने और बेचने का बात है ना। शेयर मार्केट में किस भाव में तू बेचेगा या किस भाव में खरीदेगा उसे मार्केट वैल्यू बोलते हैं। और ये सब श्रीमती देसाई ने सेल किया या खरीदा है शेयर्स को, तो मार्केट वैल्यू ही काम का है, फेस वैल्यू का इसमें कुछ काम नहीं है। ठीक है, मार्केट वैल्यू 50 था हर शेयर का। उसने कितना शेयर बेचा ये अपने को मालूम नहीं है, लेकिन एक शेयर का मार्केट वैल्यू 50 था। उसने ब्रोकरेज भरा 0.2% और ब्रोकरेज पे जीएसटी भरा 18%। कितना शेयर बेचा मालूम नहीं है, उसको टोटल 4,988.20 मिला। अब शेयर बेचा कितना होगा ये निकालेंगे कैसे? तू एक काम कर, पहले ये निकाल कि एक शेयर बेच के कितना मिलेगा, तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि इतना अगर उसको मिला रहेगा तो शेयर कितना बेचा। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹50। ब्रोकरेज अमाउंट पहले लिखने का, ब्रोकरेज इक्वल टू 0.2%। अभी लिख लेंगे ब्रोकरेज अमाउंट, दैट विल बी 0.2 अपॉन 100 इंटू 50। ये तेरा आ जाएगा 0.1 रुपीज। एंड प्लस जीएसटी कितना भरेगी वो? 18% भरेगी ऑन ब्रोकरेज। ध्यान में रख, जीएसटी भरा जाएगा ब्रोकरेज पे, मतलब 0.1 रुपीज पे। तो जो तेरा जीएसटी आएगा दैट विल बी 0.018 रुपीज। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग वन शेयर
ये आएगा 50 रुपीज जो उसको मिला, माइनस ब्रोकर को देना पड़ेगा ना 0.1 रुपीज, और उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा, तो वो सारा पैसा निकलेगा ये 50 रुपीज में से। अगर ये माइनस करना हो, द करेक्ट वे टू परफॉर्म द कैलकुलेशन इज दिस, कंसिडर इट एज 50.000, 0.1 और 0.018, वो टोटल आएगा 0.118। माइनस करने के लिए 3 डेसिमल लिखने का, ये 4, ये सब तेरा बन जाएगा 9, और ये 10, ये 288.94। ओके, बच्चे जैसा लगेगा थोड़ा, लेकिन एग्जाम्स में अपने को गलती करना नहीं है, तो पूरा कैलकुलेशन इसी तरह से परफॉर्म करने का। सो फाइनली अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 1 शेयर, we just calculated this was rupees 49.882. Okay, what is the total amount she received? Total amount she received was rupees 4988.20. It is very clear now. Therefore, number of shares sold, देख बहुत क्लियर है, टोटल अमाउंट ये है, एक शेयर का अमाउंट ये है, तो कितना शेयर बेचा, इट विल बी 4988.20 डिवाइडेड बाय 49.882। अब तू बोलेगा अरे यार ये कैलकुलेट कैसे करूं? कैलकुलेट करने के लिए तू क्या कर, ऊपर और नीचे दोनों नंबर सेम बना। ये नीचे का नंबर अगर ऊपर जैसा बनाना रहेगा तो डेसिमल 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर को तू 100 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर भी 100 से मल्टीप्लाई करने का, अपॉन मैंने जैसे बोला डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर, मतलब डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर, बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड वो आ गया 100, सीधा बात। फाइनल स्टेटमेंट लिख लेने का वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन में, दैट देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड आर 100। ओके, बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ा लंबा भी है, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग इट। मिस्टर डिसूजा इज परचेजिंग 200 शेयर्स, फेस वैल्यू 50 है, प्रीमियम रुपीज 100 है। ध्यान में रख, प्रीमियम एक नया वर्ड आ गया, बताता हूं प्रीमियम मतलब क्या, क्वेश्चन पढ़ पहले। 50% डिविडेंड मिलेगा शेयर्स पे, फाइन। डिविडेंड मिलने के बाद आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड डिसूजा ने 100 शेयर्स सेल कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज, और बचा हुआ शेयर्स उसने बेचा एट अ प्रीमियम ऑफ 75। दो टर्म और आया, डिस्काउंट और प्रीमियम। प्रीमियम तो चल पहले आ चुका था, तो दो नया टर्म आया इस क्वेश्चन में, डिस्काउंट और प्रीमियम। फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस एंड बाय हाउ मच। स्टेप वाइज कर, सम बहुत सिंपल है। मिस्टर डिसूजा ने कितना शेयर लिया, 200 शेयर लिया। शेयर का फेस वैल्यू 50 था, प्रीमियम 100 था, मार्केट वैल्यू अपने को नहीं मालूम है। प्रीमियम मतलब अगर तेरा शेयर मार्केट में फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे बिक रहा है, मान ले मेरे कंपनी का शेयर प्राइस फेस वैल्यू 70 रुपीज है, लेकिन मार्केट में 100 पे बिक रहा है, तो आई कैन से दैट द प्रीमियम इज 30 रुपीज। शॉर्ट में समझाऊं तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम विल बी द मार्केट वैल्यू। उसी तरह से डिस्काउंट मतलब ऑपोजिट, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट दैट विल बी मार्केट वैल्यू। शेयर अगर कम में जाता रहेगा फेस वैल्यू से, तो हम कहेंगे शेयर पे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। ओके, इसको अभी सॉल्व करते हैं। डिसूजा पे आते हैं। डिसूजा ने जो शेयर बाय किया उसका फेस वैल्यू 50 था और प्रीमियम था 70 रुपीज, सॉरी प्रीमियम था 100 रुपीज। तो वी विल से परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर, परचेज प्राइस नहीं, लेट्स से market value of 1 share is going to be the face value 50 plus the premium which is 100, ये आ जाएगा रुपीज 150।
नंबर ऑफ शेयर्स डिसूजा ने कितना खरीदा? 200. Therefore, total amount is going to be 200 into 150. ये तेरा आ जाएगा ₹30,000. क्वेश्चन में देख ये भी बोला है कि मिस्टर डिसूजा ने हर ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकरेज दिया. यहां पे परसेंटेज नहीं दिया, सीधा बोल दिया ब्रोकरेज 20 रुपीज का दे दिया उसने हर ट्रांजैक्शन के लिए. तो अभी आ गया तेरा ब्रोकरेज. ब्रोकरेज आ गया 20 रुपीज. तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, डिसूजा ने खर्चा कितना किया? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज गोइंग टू बी 30,000 जो उसने शेयर्स में डाला, प्लस ब्रोकरेज दिया 20 रुपीज. ये आ गया ₹30,020. इतना अमाउंट डिसूजा ने इन्वेस्ट किया. ये तो खाली तेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन खत्म हुआ कि डिसूजा ने इतना शेयर लिया और उसने इतना ब्रोकरेज दिया. अभी आजा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे. ही इज रिसीविंग 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स. पहले इसका गेन निकाल उसका. अगर गेन निकालेंगे तो पहले कहेंगे डिविडेंड ऑन ईच शेयर. देख डिविडेंड उसे मिला 50% का, लेकिन मैंने तेरे से कहा था कंपनी अगर डिविडेंड निकालेगा तो फेस वैल्यू पे निकालेगा. शेयर का फेस वैल्यू 50 था, तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर जो डिसूजा को मिलेगा दैट विल बी 50% ऑफ 50. ये आ जाएगा ₹25. नंबर ऑफ शेयर्स कितना था डिसूजा के पास? 200. So therefore dividend amount received is going to be 200 shares multiplied by 25 rupees on each share. ये तेरा आ जाएगा ₹5,000. इतना उसको डिविडेंड मिला. और डिविडेंड पे ब्रोकर को ब्रोकरेज नहीं देते. कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया तो ब्रोकर तेरे तक डिविडेंड पहुंचा देगा विदाउट टेकिंग एनी कमीशन. ब्रोकरेज डिविडेंड पे देने का नहीं होता है. ब्रोकरेज देने का खाली शेयर बेचा या खरीदा तभी. ओके, इतना हम लोग ने अभी कैलकुलेट कर लिया. 50% ऑन शेयर्स, उसको डिविडेंड मिला. आगे बढ़ते हैं. आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही इज सेलिंग 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज एंड द रिमेनिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 75. उसने शेयर्स बेचा लेकिन आधा आधा करके बेचा. उसने पहले 100 शेयर्स बेचा एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10. सो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना आया? फेस वैल्यू 50 था, उस पर डिस्काउंट अगर 10 लगाया तो ₹40 आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. कितना शेयर बेचा? 100. तो व्हाट इज द अमाउंट दैट ही विल रिसीव? अमाउंट रिसीव तेरा आ जाएगा 100 शेयर्स इंटू उसने 40 रुपीज में बेचा तो ये आएगा ₹4,000. इस पे उसने ब्रोकरेज भी दिया, उसको जरा एंड में कैलकुलेट करेंगे. पहले उसने बाकी का भी जो 100 शेयर्स बेचा उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं. बाकी का जो 100 शेयर्स था वो बेचा गया है प्रीमियम 75 रुपीज पे. तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ये तेरा आ जाएगा 75 का प्रीमियम, फेस वैल्यू 50 पे. तो ये आ गया ₹125. एंड नाउ यू कैन से दैट अमाउंट रिसीव्ड ये बनेगा 100 शेयर्स इंटू 125 था ईच शेयर का कॉस्ट, और ये तेरा आ जाएगा ₹12,500. ब्रोकरेज कितना भरा उसने? दो अलग अलग ट्रांजैक्शन था ना, तो 20 + 20, पहला 100 का अलग और दूसरे 100 का अलग 20. तो ब्रोकरेज भरना पड़ा ₹40. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड? ध्यान में रख, इसको मिला था डिविडेंड मिला था 5,000 रुपीज, प्लस उसको मिला था 4,000 रुपीज बाई सेलिंग द फर्स्ट 100 शेयर्स. उसको अभी मिला 12,500 और इसमें से वो 40 रुपीज का ब्रोकरेज दे देगा. तो इसको मिलेगा 5 और 4 9,000 और 12 मतलब 21,000. 21,500 40 माइनस कर दे तो 21,460 आएगा.
इतना अमाउंट उसे मिला, इन्वेस्ट कितना किया था, ज्यादा किया था, सीधी बात है। डिसूजा तू घाटे में गया, डिसूजा तूने लॉस किया, तो हम कहेंगे सिंस अमाउंट रिसीव्ड is less than amount invested, loss is incurred. And how much is the loss amount? That is the, oh, you should write the full forms, okay? Amount received, sorry, amount invested minus the amount received. And that should be equal to amount invested 30,020 था, minus the amount received, that is 21,460. माइनस कर तो 30 माइनस 21 9,000, 9,000 में से 400 माइनस कर तो 8,600, 8,600 में से 60 माइनस कर 8,540 और 20 ऐड कर 8,560 आएगा। ठीक है, ये तेरा आ गया loss amount of Mr. D'Souza. And finally you write a final statement that therefore write it in the words of the question. Find whether Mr. D'Souza gained or incurred a loss. Loss आया by how much? So we can say that therefore Mr. D'Souza incurred a loss of rupees 8650 था, 8560 था, 8560. Put that in a box to highlight your final answer. So here's where we are done with yet another exercise.